Hi guys, welcome back to Seedhi Baat. I'm your host Lovepreet Kaur, and for a change today we don't have Pawan with us, and that's because we are recording the first ever offline show of Seedhi Baat in the audio studio of the Department of Journalism and Mass Communication of Punjabi University. And for this show, who has come to honor our podcast is my friend, my best friend Harman from the university. To give you an idea about Harman is studying with me in the Department of Journalism and Mass Communication in Punjabi University. He is a passionate speaker, a singer, and I was always dying to know what his story has been when he started, singing, and what are his goals in the future. Of course, we know that this is a very competitive market, so we'll also get to know from him what kind of challenges he faces on an everyday basis and how young aspiring singers like him can go ahead and make their path through this competitive industry and make a mark in the world. This show is also very important for us because recently we have lost two of the very beautiful singers of India, and they both have very different genres, but we loved both of them a lot, and we personally think that this is a great loss to the industry, and we are looking forward to more and more young singers coming up. One of them definitely would be Harman. So I can think without any further ado, let's get started. So hi Harman, welcome to Seedhi Baat. Thank you so much. Thank you. I never thought कि मैं show पे आऊँगा कभी. Right? Thank you so much for joining, Harman. To begin with, I guess to start off, I think you can tell us how did your interest in music start? When did you realize that you were interested about music, and how did it all fall into place? The thing is कि जब कुछ होना होता है वो एक छोटे छोटे hints से start होता है, right? I was very young. I was like 5 or 6 when I started going to school in first or second class, and मुझे याद है मैं अपने पापा के साथ लोकल गुरुद्वारों में जब चल के जाया करता था, तो आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग. मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट आई यूज्ड टू सिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग एट दैट टाइम. मुझे अच्छा लगता था. मुंडिया दे हॉस्टल विच नखरोनी तेरे ना दे वजन ललकारे. That's a Punjabi song, guys. Yeah, so I used to sing that song, and my father was like, मतलब वो हंसते थे कि मतलब ये कैसे इतना छोटा सा और ऐसे गाने गा रहा है. हालांकि ठीक है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग जो उस टाइम पे मुझे नहीं गाना चाहिए था, बट चलो ठीक है. सो मैं गाता भी ठीक ठाक था उस टाइम पे, एंड मतलब आज भी गाता हूँ, सॉरी. सो धीरे धीरे फिर माई फादर उन्होंने इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में कि हाँ शायद ये इंटरेस्टेड हो. एंड मेरा ब्रदर गाया करता था ज़रूर. माई ब्रदर यूज टू सिंग. अब उसने चलो छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ताकि मैं उसमें परस्यू कर सकूँ, राइट. एंड माई ब्रदर यूज टू सिंग. वो कीर्तन किया करता था. ओके. सो पापा बॉट दैट दिस हारमोनियम फॉर हिम, ठीक है. एंड उसी हारमोनियम पे मैंने भी हाथ डालना शुरू किया, मैंने भी रियाज करना शुरू किया, मैंने भी कीर्तन करना शुरू कर दिया द सेम स्पॉट जहाँ पे वो किया करता था. एंड आई डिड दिस कीर्तन फॉर एटलीस्ट 4 years. मैंने 4 साल तक यही चीज़ की, खुद ही शब्द निकालने, खुद ही गुरबाणी में से जो है वो पाठ निकालना और उसकी कॉम्पोजिशन खुद ही बनानी. वेरी इन दैट एज लाइक 6 or 7 years बनानी. एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे वो सबको सुनाता था. एंड एवरीवन, जो मैंने पहली बार गाया था तो मुझे आज भी याद है. मुझे उसको क्या बोलते हैं, एक जो आप जब गाते हो तो मुझे नहीं पता उसको हिंदी में कैसे कहते हैं, जब व्हेन यू सिंग, जब व्हेन यू रिसाइट होली हाइम्स, तो आपको वो पैसे कुछ लोग खुशी की वजह से दे जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ अ डोनेशन आपको दे जाते हैं, राइट. तो मुझे आज भी याद है, मुझे 160 रुपये मिले थे उस टाइम पे. दैट टाइम वो मेरी पहली कमाई थी. 7 साल की उम्र में मेरी पहली कमाई थी वो. एंड मेरा इंटरेस्ट इसी तरह से जागा था कि मेरा ब्रदर गाया करता है ना, उसको देख के धीरे धीरे मुझे अच्छा लगता था कि यार उसको मतलब काइंड ऑफ कि देख के यार कितना सब उसको पसंद करते हैं, मुझे भी शायद करें. एंड वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई. एंड इन द सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं अपने स्कूल में 2nd क्लास में मैंने स्टेज पे जाना स्टार्ट कर दिया था. या तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने अपने टीचर को जो था वो इंसिस्ट किया था कि मुझे भी स्टेज पे आने दो, एंड तब से मैं स्टेज पे ही था. So guys, I'll give you 2 disclaimers now. First is, don't mind us sweating because there is no AC in the audio studio and we are recording here just for you guys. So hit like for that, guys. Hit like. And एक और चीज़ है, AC भी नहीं है और ऊपर से यहाँ पे एक बहुत हीट से भरी हुई लाइट लगी हुई है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही है. The second thing is that, guys, Harman mentioned about Kirtan. So Kirtan is in the Gurdwaras, if you ever visit. So they sing, they
recite the holy hymns, which a lot of people absolutely love, and that happens in mandirs as aarti, it happens in mosques as azan. So that's what you call kirtan in our religion. And I think, I visited Harman's place, Amritsar, a few months back, and I've seen one thing very common in their family, that all of them have something for music. Especially all these three siblings, they have something for music, and they absolutely enjoy listening to quality music and singing quality music. If I'm not wrong, even Harman's sister sings really well, and she's also very, very keen about music. She was with me in the school, और वो भी स्कूल में ही म्यूजिक मेरे साथ करते थे. मतलब स्टार्ट पहले मैंने किया था, but after that, however, although she's elder than me, elder to me, but फिर भी I started it earlier, and after like 1 or 2 years she started. She started it. Okay, so Harman, tell us, how did you start the whole game of live shows? So if you check out Harman's account, which I'm gonna, it's gonna appear over here, his Instagram profile, go and check out, guys. He has the most amazing profile. He's a multitasker. I feel Harman is a pack of good things. He's an editor, he's a very good speaker, he has an absolutely amazing voice, so a good singer, and is involved in a lot of social service as well. But you specifically check out his band page, and you'll see there are hundreds of shows he's done till date, and all of them, at different locations, different spots. So Harman, tell us, where did it all start? What was your first show? How did you feel when you got on the stage for the first time? Okay, so the story starts from मुझे एक brand का नाम लेना पड़ेगा, but story starts from Coke Studio. Oh, yeah. Wow. Coke Studio and Nescafe Basement. These were two very, very, inspiring एपिसोड्स मैं कह सकता हूँ. ऑब्वियसली वो एक एपिसोड ही है, एपिसोड्स, म्यूजिकल एपिसोड्स जो मैं देखा करता था. लाइक द वेरी फर्स्ट कोक स्टूडियो सॉन्ग जो मुझे मेरे कज़न ने सुनाया था वाज जुगनी बाय आरिफ लोहार. दैट वाज इन कोक स्टूडियो. मैंने वो वीडियो देखी थी. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज़ मतलब कैसे कर रहे हैं ये लोग, मतलब सब लाइव म्यूज़िक बन रहा है, बिकॉज इतनी नॉलेज नहीं थी कि म्यूज़िक कैसे बनता है. सो वो सब मैंने देखा, एंड उसके बाद वो फर्स्ट एपिसोड था जुगनी का, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके आई यूज्ड टू सर्च दोज एपिसोड्स, एंड दिस बैंड थिंग स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन +2. यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे मार्च में, एंड मैं February 20 तक, मेरे 29th ऑफ February को फर्स्ट एग्जाम था मेरा, 29th दैट वाज अ लीप ईयर. सो 29th ऑफ February का मेरा फर्स्ट एग्जाम था, एंड 20th ऑफ February तक मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था. आई वाज जस्ट डूइंग दिस बैंड थिंग बिकॉज मेरे लिए इतना न्यू था. I collected all the talented people from Amritsar. Okay. Some used to play violin, some used to play acoustic guitar, some used to play tabla. Okay. At that time हमारे पास drummer नहीं था. So we just started with this percussion thing, tabla and cajon. Okay. So धीरे धीरे करके I collected all those people, a few from my school, a few from other schools, a few from the music class I used to go to. Okay. Yeah. And धीरे धीरे उनको मैंने collect करके 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया, and we started jamming together. ठीक है. मैं स्कूल से आता था, वो लोग स्कूल से आते थे. They used to travel like 15-20 kilometers. I used to travel sometimes 15-20 kilometers. एक दूसरे के घर पे प्रैक्टिस रखते थे हम लोग. एंड फिर धीरे धीरे हमने एक जैमिंग सेशंस करने स्टार्ट किए, एंड स्कूल से आना और रात के कम से कम 8:30-9 बजे तक हम वहीं पे बैठे रहते थे. मतलब 6-7 घंटे वी यूज्ड टू जैम. तो उस टाइम पे इतना पैशन था सब में, मतलब इतना, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज़ थी, मेरे लिए भी नई चीज़ थी. इट वाज वेरी न्यू. So we created songs. हालांकि we created not our own songs but other songs we created, दूसरों के गाए हुए. Mixing and all of that, right? the covers. So हमने वो बनाना शुरू किया, and we got opportunities to perform. और मैंने शुरू में बहुत फ्री में परफॉर्म किया है, एंड इनफैक्ट खुद की जेब से पैसे दे के परफॉर्म किया मैंने. ओके. या इन मॉल्स, लाइक अमृतसर में जो सबसे फेमस मॉल था उस टाइम पे, मॉल ऑफ, आज की डेट में दैट इज मॉल ऑफ अमृतसर, दैट वाज अल्फा वन एट दैट टाइम. ऑलराइट. सो वहाँ पे मैंने फ्री में परफॉर्म किया. वो उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है आज भी. सो सेलिब्रेशन मॉल में मैंने परफॉर्म किया फॉर फ्री, एंड धीरे धीरे करके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक अप करके जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ नेम, नॉट माई सेल्फ बट माई बैंड अ नेम, कि हाँ हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. सो द बैंड्स नेम फर्स्ट आई केप्ट वाज रेवोल्यूशन 999 समथिंग लाइक दिस. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या अजीब सी चीज़ आई जो मैंने ये नाम रख लिया. एंड आफ्टर दैट आई चेंज्ड द नेम टू खैरियत, एंड टिल डेट वही नाम चल रहा है. खैरियत इज़ द नेम जो चल रहा है अभी तक.
एंड उसी नेम से आई परफॉर्म्ड अ लॉट. जो फर्स्ट मेरी परफॉर्मेंस थी, जो पेड परफॉर्मेंस थी, अगर मैं पेड की बात करूँ, मतलब नॉट इंटेंशनली पेड, मुझे पता नहीं था मुझे पैसे मिल जाएंगे, बट मिल गए. दैट वाज इन स्कूल. हमारे स्कूल में एक there was this alumni OSTA kind of a meeting. OSTA is like old students and teachers association. हमारे स्कूल में एक चलता है. Yeah, fancy name, huh? Yeah. So alumni meet थी हमारे स्कूल में, and I was in the last year of school. मतलब I was in +2 class, 12th class. So मेरे स्कूल में हम 3 लोग हमारे स्कूल के थे, and then 3 लोग अदर स्कूल के. तो so we went to a school. हमने वहाँ पे एक परफॉर्मेंस दी. एंड मेरे उस टाइम के प्रिंसिपल मिस्टर A.S. गिल, ही अवॉर्डेड मी विद 1000 रुपीज़ एट दैट टाइम. सो वो ये सिलसिला मतलब पहले भी चलता था. परफॉर्मेंस मेरी मतलब पहले भी आई वाज पेड, बट बैंड के साथ आई वाज पेड दैट फेस उस टाइम पे. सो ये तब हुआ स्टार्ट. आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू क्लबिंग मतलब मुझे किसी ने आइडिया दिया कि आप क्लब्स को अप्रोच करो, वहाँ पे यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर इवेंट्स एज वेल, राइट. सो द वेरी फर्स्ट क्लब दैट आई वेंट टू परफॉर्म इन वाज पेडलर्स अमृतसर. Okay. पेडलर्स अमृतसर में मैंने परफॉर्म You किया. cannot stop taking their name, by the way, because he loves their food as well, right? नहीं, that is Peddlers Jalandhar, not Amritsar. Okay, it's Peddlers for God's sake. Yeah, it's Peddlers. So मैंने Peddlers को we approached them, and for the very first time paid नहीं था, वो ट्रायल ही था, बट क्लबिंग में मैंने स्टेप इन जो था वो उसमें किया. सो ट्रायल बेसिस पे we performed there, and after that they started paying us. सो धीरे धीरे फिर हमने क्लब्स में जो है वो एंट्री अपनी शुरू कर दी. एंड देन ये सब, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन क्लबिंग. Right, right. So you were always like confident, or did it take some time to you to actually settle into the environment and become confident with your audience and everything? That's a very good question actually, because मुझे आज भी याद है, मैंने जैसे पहले बताया, we used to jam. हम जैम करते थे. So अगर हमने 10 songs जैम किए ना, so we were very confident, not very, but we were confident about those 10 songs. ये वो तो कर लेंगे. But अगर कोई 11वां सॉन्ग आ गया सामने से, ऑडियंस की तरफ मौत पड़ जाती थी हमें कि अब करना कैसे है, राइट. सो जैसे तैसे we used to sing, and उस टाइम पे इतने प्रोफेशनल नहीं थे, बस किया करते थे. सो ऑब्वियसली वो उस फेज में कंफर्टेबल होने के लिए और कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत टाइम लगा मुझे. लाइक मुझे 3 साल लग गए थे एटलीस्ट उस फेज में कंफर्टेबल होने के लिए. एंड आज की डेट है, आज अगर मुझे कोई गाना आता है एंड मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की, तो वो सॉन्ग डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा. दैट इज माई गारंटी. वो बहुत अच्छा होता है. सो ऑब्वियसली टाइम लगता है किसी भी फेज में एनवायरमेंट में ढलने के लिए. आई हैव सीन हिम परफॉर्म एंड इट डजंट लुक लाइक एनीथिंग लाइक ही इज यंग और ही इज न्यू टू दिस प्रोफेशन. ही परफॉर्म्स वेरी प्रोफेशनली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई guess he very gracefully, whatever time he's on stage, he's very, very graceful, very warm, and the audience is constantly just looking at him. Honestly, I've seen audience in multiple places just constantly staring at him while he's singing. So that grace definitely is there, and I really appreciate you for that, because for a performer, I feel to keep your audience binded towards yourself, that too for like straight up 2.5-3 hours, and that too while people have different preferences, especially in music. It's very hard. It's definitely very hard, especially in Punjab. I'm sorry to interrupt. Especially in Punjab, when they always prefer कि हमें बस धूम धड़ाका चाहिए जी वही. And I'm not that kind of a singer कि मैं धूम धड़ाका ही गाऊँ हमेशा. I can sing those as well, and I do sing those as well. But ठीक है, most of the times I'm like कि let's make it something melodious, चलता रहे and सबको मजा भी आए. And those who enjoy those melodious song, वो भी they enjoy it a lot as well. They enjoy it a lot. Absolutely. So the name is very beautiful. Khairyat is a beautiful name, and I think Harman's voice comes out best when he's into romantic melodies and when he's singing soft songs or emotional songs. And rather, he's recently launched a cover song as well, which is Chunar. And trust me, guys, even I was shocked after listening to it, because that voice is just wow. I mean, I can't tell you in words, but you need to listen to it. I don't know if I should say this or not, but I loved that what he sang more than the original version of the song, to be very honest. It was beautiful. It was beautiful, and that was probably the best I heard from Harman ever. So you guys should definitely check that out. Okay, so now coming to the serious aspect of it, Harman, since this industry is very competitive, actually any industry where there's glam involved, even if it's media or if it's Bollywood or if it's music, there's a lot of competition involved. And especially in Punjab, they say
very popular saying कि हर गली में सिंगर पैदा हो रहा है पंजाब में. So there is a lot of youngsters in Punjab who are very good in music. I won't say that anybody comes up and starts singing. Some of them are really, really very nice. We have heard some very exceptional voices in the most unexpected places, guys. Most unexpected. So, how do you, for people who are like you, aspiring to become singers, what are the kinds of challenges that you have come across in your journey, and what kind of mindset helps you get through them? Okay, tough question. The thing is, मैं इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से I'll answer it because हर एक का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है चीज़ों को देखने का. जो मेरा पर्सपेक्टिव है जो मेरे आसपास लोग रहे हैं, मैं जिन लोगों के आसपास रहा हूँ, जो उनका पर्सपेक्टिव है, I'll speak according to that. So the thing is कि इस लाइन में ऑब्वियसली ये सब कहते हैं कि आज नॉर्मल दिस इज़ अ नॉर्मल सेइंग कि ईंट उठाओ तो सिंगर है, ठीक है. और आफ्टर दैट जब सिंगर्स का नंबर बढ़ गया पंजाब में तो देखा कि ईंट उठाने की जरूरत नहीं, ईंट के ऊपर ही बैठा हुआ है. सो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है. अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मेरे हॉस्टल में ही अगर 100 कमरे हैं और 100 कमरों में 200 लोग रह रहे हैं, तो 200 में से बीच में आई एम डैम श्योर कि 200 में से 80 या 90 गा रहे हैं. Wow. Yeah. Okay. And 80-90 में से 20-25 अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, राइट. एंड सॉरी मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ हो रही है. But then of course this is an art. और अगर आप just because you might be blessed with a good voice, but until you do रियाज, like Harman always says, जब तक आप practice नहीं करोगे तब तक you can't expect your singing to become exceptional. You might be blessed with a good voice, no doubt. I used to have a very good voice when I was a kid, but I never practiced, and that's the difference you see between two people. He's a singer and I'm not a singer. Simple as that, right? Sorry to interrupt you. No, it's okay. It's absolutely fine. So what happens is कि जब आप इस लाइन में चलते हो, if you're actually passionate कि आपको करना ही ये है, तो फिर मेरे हिसाब से फिर इस चीज़ के पीछे आपको एक तो नंबर 1 पागल होना पड़ेगा, राइट. आई हैव सीन पीपल जो रात को रियाज करना शुरू करते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी से डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई और आके डिस्टर्ब ना करे. माई उस्ताद जी, माई गुरु जी यूज टू टेल मी दिस कि देयर वाज सम सिंगर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, देयर वाज सम सिंगर इन हिस्ट्री जिन्होंने अपने घर में 2-3 बेसमेंट के नीचे जाके एक रूम बनाया था जस्ट फॉर रियाज. एंड ही यूज टू से दिस कि मैंने ये रूम इसलिए बनाया है यहाँ पे इतनी बेसमेंट में जाके, जस्ट दैट कि अगर मेरे घर में कोई मर भी जाए तो मेरा रियाज ना रुके. सो दिस इज़, ये जो लाइन है म्यूज़िक की, दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशन. इसके लिए एक तो आपको नंबर 1 पैशनेट होना पड़ेगा. एंड फॉर म्यूजिक लवर्स, if you ask anyone for music lovers, this is a second religion that you follow. This is a second religion. Absolutely. Because if you follow Christianity, if you follow Islam, if you follow Hinduism, if you follow Jainism, Buddhism or Sikhism as well, music has a very very significant role, especially in Sikhism. If you know कि हमारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो सारा का सारा ग्रंथ, that holy book is based on this rags and all. So not religious comments, sorry. A lot of it is rhythm as well. Yeah. When you read it you realize. Yeah. So ये चीज़ होती है कि जब आप इस लाइन में जाना चाहते हो, फॉर नंबर 1 यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, ठीक है. आप छोड़ नहीं सकते चीज़ों को, ठीक है. एंड स्पेशली फॉर मी, जब मुझे पहचान ही स्कूल में 11 साल मुझे स्कूल में इसी चीज़ से पहचान मिली है, फ्रॉम 2nd क्लास टू 12th क्लास इसी चीज़ से पहचान मिली है. तो राइट नाउ अब मेरे लिए दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल टू लीव, राइट. दूसरी चीज़, इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू इन इट, यू हैव टू लुक फॉर चांसेस अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ रेजिडेंस, राइट. लाइक इन पंजाब ज़्यादातर जो ट्रेंड चलता है दैट इज़ कि आप सिंगल्स करो, आप एल्बम्स करो, राइट. एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है देन यू हैव टू प्रमोट थिंग्स इन अ नाइस वे, इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट आपको क्रिटिसिज्म भी ना मिले एंड आपका जो है वो काम भी चलता रहे, राइट. सो फॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से फॉर मी, मैंने ऑडिशंस दिए हैं, लाइक आई हैव given like 27 times I've given auditions in different shows. So after that मुझे एक particular point पे आके I stopped कि अब नहीं करना है ये चीज़. एंड हर एक इंसान के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है. आप ऑडिशंस दे के किसी रियलिटी शो में परस्यू करते हो एंड वहाँ पे जाके आप एक पहचान गेन करते हो, एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर लाइव शोज या फिर यू गो फॉर योर कवर्स एंड ऑल. कई सिंगर्स ऐसे भी हैं जो who have won the reality shows, but आज की डेट में उन्हें कोई नहीं जानता. There are
सम सिंगर्स जो जीते नहीं थे, जो टॉप 10 में भी थे, लेकिन दे हैव मेड देयर वे थ्रू यू नो अ लॉट। तो आज की डेट में वो छा रहे हैं ऑब्वियसली। सो ये अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे चीज़ों को खुद पे लेते हो, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो औरों के सामने, दैट डिपेंड्स। डजंट मैटर कि आपने क्या अचीव कर लिया है, इट मैटर्स कि आप कंटिन्यूटी में कैसे रह रहे हो। So there's basically no algorithm or formula कि ये घोल घोल के पी जाओगे तो you'll become a successful रियाज इज द बेसिक एल्गोरिदम। अगर आप एथिकली म्यूजिक में जाना चाहते हो, राइट, अगर आप चाहते हो कि आपको जब कोई लाइव सुने तो वाव की आवाज आए, राइट, तो दैट इज रियाज इज द बेसिक एल्गोरिदम। लेकिन द वे टू गो, या द पाथ कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। Okay, so guys, we did not realize, but our recording stopped in between, and we were constantly speaking. So Harman, अगर आपको हमारे चेहरे थोड़े सुंदर लग रहे हो तो उसका रीजन है कि जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई तो उसको वापस रीसेट करने के लिए हमने बीच में पंखा लगा लिया था। Why do you have to disclose my BTS? Okay, We'll put the BTS in other video, हम ऐसे कर लेंगे। Okay, guys, I'll ask that question again because Harman gave a beautiful answer, but unfortunately did not get recorded. I don't know what happened. So Harman, like I was asking you, what are the challenges that if a new singer is coming up, he does not have a background, he does not have any clue how to go about it, but he's absolutely passionate, he's talented. What are the challenges that they face, and what could be the way through it? So the challenges, the biggest challenge that you face is, अगर number one, there's a condition in this question कि या तो आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, राइट। सो अगर तो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट इज अ वे बिगर चैलेंज मुझे जो लगता है, बिकॉज आपको हर तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म मिलती है फिर, राइट। वो माइंड पे लेना या दिल पे लेना बहुत ईजी है, डिसहार्टन होना बहुत ईजी है उसमें। सबसे बड़ी जो बंदे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है वो होता है फैमिली का। अगर आपको फैमिली ही आपकी फील्ड में सपोर्ट ना करे, विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, लोग आज की डेट में लोग अभी भी इतने मॉडर्न होने के बावजूद सिंगिंग को या म्यूज़िक को नॉर्मली गाना बजाना हॉबी समझते हैं। उसको इंडियन पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए इसको एक प्रोफेशन समझ पाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो क्योंकि वो ये चाहते हैं, ऑब्वियसली वो भी अपनी जगह सही है कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, और इस फील्ड में फ्यूचर सिक्योर होना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आप किसी बहुत ऊंचे स्टेज पे हो, बहुत बुलंदियों पे हो। सो दिस इज़ वन चैलेंज। अगर आपका बैकग्राउंड म्यूज़िकल नहीं है, अगर आप म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो अपनी फैमिली को ये इंसिस्ट करना कि you can do something in it and you will do something in it is very very difficult, ठीक है। and in few families it is next to impossible, right। जो second challenge है और second condition है, if you are from a मतलब if you are not criticized, अगर आप अप्रूव सब कर देते हैं कि ठीक है अगर वो करना चाहता है, let him or her do that। तो सेकंड थिंग इज गाइडेंस, ठीक है। आपको अप्रूवल मिल गया लेकिन आपको गाइडेंस नहीं है, आपको करना क्या है अब, राइट। यू नो द डेस्टिनेशन बट यू डोंट नो द पाथ कि जाना कैसे है। दैट इज वन बिग प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसमें आती है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे खुद खुद वे समझ में आने लगेगा। म्यूजिक एक ऐसी लाइन है कि अगर आप इसके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहो म्यूजिक के साथ, तो आपको धीरे 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 खुद ही वे समझ में आने लगते हैं। क्योंकि या वन कॉमन ट्रेंड जो आपने बॉलीवुड या इंडिया की किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में नोट किया होगा, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री में नोट किया होगा कि ये कभी भी ट्रेंड चेंज कर देते हैं, राइट। बॉलीवुड में आज से मैं कुछ साल पहले जाऊँ, आई स्टिल रिमेंबर, मैं मुंबई में था एंड आई वाज शॉक टू सी दैट कि वहाँ पे भी हनी सिंह के पंजाबी सॉन्ग्स वर प्लेड बहुत पैशनेटली, बहुत वहाँ पे लोग सुनते हैं। And this thing is way back in 2015, I guess. 7 सालों में, now it's to 2022. 7 सालों में you can see a lot of change Man, in you trend. can't imagine movies these days without Punjabi songs. Yeah. You can't imagine parties, shadis in any city of the country. Yeah. You can't imagine any clubbing site without Punjabi songs. This is what I was coming to. So 2020 से लेके 2010 तक जो दौर चला है, उसमें आप देखोगे कि अलग सॉन्ग्स थे। इमरान हाशमी के सॉन्ग्स बहुत फेमस हुआ करते थे, मतलब इमरान हाशमी स्टारर सॉन्ग्स, या सो बहुत फेमस हुआ करते थे। सो वो एक दौर अलग था। एंड देन आफ्टर दैट अब यू मे ऑब्जर्व कि 2011 2012 ये चीज़ें चली हैं धीरे धीरे कि चेंज होना शुरू हुआ। हनी सिंह जो है उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, या द पॉप कल्चर बेसिकली आना शुरू हो गया, द रैप कल्चर। एंड आफ्टर दैट नाउ यू सीइंग जो व्हाट आई पर्सनली फील इज कि बॉलीवुड के पास जो है इस टाइम पे कंटेंट की कमी है म्यूज़िक इंडस्ट्री के पास, राइट। आप देखोगे कि वो
क्या कर रहे हैं वो लोग, पंजाबी सॉन्ग्स को रीमिक्स करके विद न्यू लिरिक्स और बीच में नए सिंगर्स को ऐड करके, जो जिसने ओरिजिनली गाया वो तो है ही, ठीक है, लेकिन बीच में नए सिंगर्स को ऐड करके वो उसको कुछ नया बना रहे हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैव सीन ओवर द इयर्स, लास्ट फ्यू इयर्स की फिल्म्स में देयर इज सम एंगल लाइक वन पंजाबी सॉन्ग इज अ मस्ट, इवन इफ इट्स नॉट लाइक प्योर पंजाबी, व्हिच इज समथिंग व्हिच रियली बॉदर्स मी अ लॉट कि वो प्योर पंजाबी नहीं होता, लेकिन देयर इज अ टच एंड सेंसेशनलाइजेशन. मतलब जब पंजाबी म्यूजिक ने जो एक तरह का रेवोल्यूशन लेके आया है, अब बीट लोगों को एकदम हाइप्ड रखने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, दैट एनर्जी लेवल, भांगड़ा इज नो मोर जस्ट आवर डांस फॉर्म नाउ, दे आर डूइंग इट एवरीवेयर, they are everywhere across the globe rather, and you can also, even I can, and anyone that is acknowledged with music, वो इंसान कोई भी बता सकता है कि कोई, मतलब I can name 1,000 songs जिसमें एटलीस्ट एक पंजाबी इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है. डेफिनेटली, ठीक है, चाहे वो ढोल है, ठीक है. अब यू कैन सी, अब चांद वालियां इज दैट सॉन्ग जिसमें यू कैन सी दैट एक पंजाबी एलिमेंट आया है, राइट. एक ढोल का एलिमेंट बीच में आया है, एंड देन उसमें उसके लिरिक्स यू कैन सी, प्रॉमिस है तेरे जट दा, राइट, ऐसे कुछ लिरिक्स, कल्चर थोड़ा सा वो, या सो पंजाबी. अब तू हो गई 1 2 2 ओ कुड़ी 1 2 2 ऐसी दीज थिंग्स, ठीक है. वो बीट जो अगर आप म्यूजिक भी नहीं यूज कर रहे हो तो आप पंजाबी लैंग्वेज डेफिनेटली यूज कर रहे हो सॉन्ग्स में. सो दिस इज अ ट्रेंड, यू नेवर नो कि अब आने वाले 5 सालों में ये ट्रेंड भी गायब हो जाए. यार मैंने कुछ सबसे अनएक्सपेक्टेड लोगों की गाड़ी में मैंने पंजाबी सॉन्ग्स बजते हुए सुने हैं. सबसे अनएक्सपेक्टेड लोगों के मुंह से मैंने पंजाबी सॉन्ग्स सुने हैं. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स समीर, ही इज इन हैदराबाद. देखा जाए तो उसका क्या ही लिंक है पंजाबी के साथ, बट वो हिंदी नहीं बोल पाता, पर वो पंजाबी गाने सुनता है, वो एपी ढिल्लों के गाने सुनता है, वो सिद्धू मूसेवाला को इतना मतलब बहुत रिलीजियसली फॉलो करता था. The main part, this shows that main part is not lyrics, the main part is music, the genre, the feel, the genre, the music, ठीक है. that hip hop जो आपके गाड़ी में जो डीजे प्रोवाइड करे, आपके रेडियोज में, आपके क्लब्स में जो आपको एक डीजे प्रोवाइड करे, ठीक है. सो ऑल आई कैन से इज कि बीइंग अ पंजाबी, आई एम प्राउड कि म्यूजिक इंडस्ट्री इस तरह से वर्क करती है दैट मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाके पंजाबी सॉन्ग सुनाऊं तो सबको समझ में आएगा, राइट. मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट हरमन, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर पंजाबी इंडस्ट्री? इट लुक्स ब्राइट ऑफ कोर्स, तो आपको क्या लगता है, इज इट ब्राइट? एंड अ स्मॉल सब क्वेश्चन टू ऐड व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हरमन's research, so let us tell you that we are very obedient students, we are doing our research alongside. So Harman ki research is also related to, of course, his passion music, and he's studying this popular what do you call it, the popular liking of people in terms of music. तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे म्यूजिक ने जो है चेंज किया, लोगों की लाइकिंग कैसे चेंज हुई है ओवर द इयर्स, एंड उसके क्या इफेक्ट्स हैं इन रियल लाइफ ऑफ पीपल? ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर, ऑब्वियसली अभी तक जो देखने में लग रहा है, जो पहले देखने में लगा करता था कि पंजाबी म्यूज़िक का फ्यूचर जो है इट इज़ क्वाइट ब्राइट. पहले पंजाबी म्यूज़िक वाज ऑल अबाउट कल्चर, ठीक है, कल्चर शो करना अपना, एंड रिश्तेदारियाँ दिखाना, ठीक है, दोज शादी वाले सॉन्ग्स जो टिपिकल शादी वाले सॉन्ग्स जो आज भी चलते हैं, राइट, पंजाब में. अगर पंजाबी व्यूअर्स हैं हमारे, ठीक है, वो देख रहे हैं तो यू गाइस कैन रिलेट विद that song. Comment down your favorite शादी song. Yeah, obviously, yeah, you give can. recommendations to people. ठीक है, अगर मैं कुछ भूल जाऊँ, मुझे 2-3 याद है कि सॉरी नचियाँ दरानियाँ जठानियाँ, पेके तो मैं पहला नचियाँ, बोलियाँ basically, yeah, these are टप्पे एंड बोलियाँ जिसको पंजाबी में कहते हैं, and then अपने विआह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ, right, that song, and that लाल नीले पीले पाके सूट सोने, बनी फिरदियां ने फ्रूट सोने, दिलजीत दोसांझ स्टार. सो these are all typical पंजाबी सॉन्ग्स, वेडिंग सॉन्ग्स जो आज भी चलते हैं और मुझे लगता है आने वाले 20 सालों तक चलेंगे ये, राइट. सो इन दैट कंटेक्स्ट कि अगर इट डिपेंड्स कि आप एक तो सॉन्ग्स कैसे कर रहे हैं, कि ऐसे एक एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं वो चलते रहते हैं, उनका फ्यूचर फॉरएवर एवरग्रीन फ्यूचर है. अगर आप जनरल ओवरऑल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का अगर आप फ्यूचर लगाएं तो पंजाब में इट इज वे ब्राइटर, इट्स अडैप्टिंग वेरी फास्ट, और पंजाबी म्यूजिक राइट नाउ इज एक्टिंग लाइक द हॉलीवुड म्यूजिक इंडिया में, अकॉर्डिंग टू मी हॉलीवुड म्यूजिक की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि लिसन टू दैट मूनलाइट एरा जो है, मतलब एक एल्बम है दिलजीत दोसांझ की, और इसी सिमिलरली सिद्धू मूसेवाला का ब्लैक लव, इस तरह के जो सिद्धू मूसेवाला का, सिंस सिद्धू मूसेवाला's डेथ, ठीक है, I have seen a lot of Hollywood stars giving tribute to him. मैंने एक बहुत वायरल वीडियो देखी जो पंजाब में वायरल हुई, I don't know about the other regions. पंजाब में ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है. There was some singer, मुझे इसका नाम नहीं पता to be honest. There was some singer who
was performing in a live concert, and he sang this. He literally sang this in a tone, R.I.P. Sidhu Moosewala, R.I.P. Sidhu Moosewala, and he sang this at least 5 to 6 times in the same tone. And पहली बार उसने गाया, दूसरी बार, तीसरी बार he started crying. And सिद्धू मूसेवाला का एक और वायरल वीडियो हुई, that पंजाबी वाला that action he did that as well. So पंजाबी म्यूजिक इस तरह, that's why I'm saying कि हॉलीवुड की तरह ट्रेंड कर रहा है कि if you see songs of सिद्धू मूसेवाला, उनके ज़्यादातर नेम्स जो हैं वो इंग्लिश हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम है, जस्ट लिसन, अस, and feel also, no, he's trying to give that feel also. Yeah, 295 and Dollar एंड ऑल दो सॉन्ग्स, उसके अगर आप देखो तो जो फेमस सॉन्ग्स हैं उनके सारे नेम्स जो हैं वो इंग्लिश नेम्स हैं, ठीक है. AP ढिल्लों के अगर आप सॉन्ग सुनो, AP ढिल्लों, नो डाउट, मुझे ज़रूरत नहीं है कहने की, एवरीवन इज लिसनिंग टू दैट गाय, ठीक है. बाय द वे AP ढिल्लों इज फ्रॉम माय एरिया. This is one thing he's very proud of, and honestly guys, a lot of emerging singers are from the Majha region. So if you guys don't know, Punjab is divided into 4 main regions and 3 specifically. Yeah, specifically majorly three. Yeah. Majha, Malwa, Doaba, and where we are right now, Patiala falls in the Malwa region. And from where Harman typically is, Amritsar falls in the Majha region. And the main difference is in the dialect. Culture is pretty much the same. Little different. There is also a little difference between cultures as well. How we follow the religion is exactly the same, yeah. But culture is little different, and language, dialect is very different. It's very different. So if you listen to this song, Harman, what's that song? AP ढिल्लों तारे, so कहती हुंदी सी चन्न तकरा बना दे, right? Even the other one which is actually from Taran जी बोलते हैं, that song. The Majha Block. The Majha Block. Listen to that song, guys. You will realize that there's a tone difference between how they speak and how Malwa people speak. I have nobody to say anything over here because I'm not differentiating between them, but just because I said music is a religion, so मैं ही अपने words पे गलत हो जाऊंगा अगर मैं माजा मालवा करने लग गया. नहीं, but it's just to give audience a clue कि कैसे हमारी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर रीजन में भी कितनी डाइवर्स टाइप का म्यूजिक आपके सामने आता है. Just an information. So this is what happens कि अब इफ़ यू लिसन टू AP ढिल्लों सॉन्ग्स, उनके भी सारे टाइटल्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, राइट. सो दिस इज़ अ ट्रेंड काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन, एंड पीपल दीज डेज टेंड टू शो देम से मॉडर्न, बहुत मॉडर्न दे शो देमसेल्व्स, एंड उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि एक साइकोलॉजिकली दे आर लाइकिंग दो सॉन्ग्स. उनके नाम में, द रीजन मे बी द नेम्स, the reason may be the music, the hip hop music that is going on, ठीक है. The reason may be the bases जो उनको चाहिए, ठीक है. क्योंकि आज की डेट में वॉइस एंड म्यूजिक दे आर बोथ एट द सेम लेवल. पुराने टाइम में अगर आप देखो तो म्यूजिक जो था वो डाउन होता था एंड वॉइसेस वर अप, ठीक है. सो आज के टाइम पे इट इज ऑलमोस्ट द सेम. दैट इज व्हाई दे आर लाइकिंग इट, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिंगर की भी बात समझ में आनी चाहिए और आपको म्यूजिक भी समझ में आना चाहिए. बाकी आई गेस अ लॉट ऑफ सिंगर्स आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद म्यूजिक, है ना. वो जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आजकल आ रहा है, which might एक सेकंड the EDM music, that is called the EDM music. एक पॉइंट पे जैसे दिलजीत दोसांझ का जब मूनलाइट एरा का एक सॉन्ग आया था लवर, वो गाना सुन के my first thought was wow, I mean what is that combination, you would not generally expect that kind of a combination कि एक डिस्को बीट चल रही है, जैसे पंजाबी लिरिक्स चल रहे हैं और बिल्कुल सटल, ऐसा भी नहीं. मतलब it was like अगर मैं सॉन्ग को वो करूं, अगर उसको बॉलीवुड के साथ कंपेयर करूं तो that song was like कि बप्पी लहरी ने म्यूजिक दिया उसका and sung by a Punjabi singer. So just imagine, this is how it goes, ठीक है. This is sorry मैं बीच में ऐसे करता रहता हूं. Of course, come on you. In fact from this point onwards I really want Harman, आप एक अच्छा सा गाना अगर हमें सुनाएं, आपका जो इस टाइम पे फेवरेट सॉन्ग है. Yeah, I will come to that. पहली क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ I guess. So मैं एक्चुअली लवप्रीत के साथ इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि हम ये मतलब ऐसे खरमस्तियाँ करते रहते हैं. और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे गाइस कि I bring Harman on the show, but I think इस दिन के लिए भगवान ने हमें रुकवा के रखा हुआ था कि वो पॉडकास्ट पे वो बात नहीं बननी थी जो रियल लाइफ में इस टाइम ऐसे बन रही है. और खासकर गर्मी के लिए भी रुकवा के रखा था, बाय द वे. ठीक है, we could have done this in winters as well. God, okay, yeah. So future in Punjabi, I'll wind it up soon. कि future in Punjab is very bright. In the peripheral regions of Punjab is very bright. But if I talk about Bollywood or South industry ने आज अभी तक भी पंजाबी म्यूजिक अडैप्ट नहीं किया है, ठीक है. And I don't think they easily will, क्योंकि अगर मैं ethically देखूँ तो the music is divided into 2 parts, Indian music and the Carnatic music. So and Carnatic music is still very tough, guys. Very tough. It has its own beauty and it has its own legacy.
लेगेसी टिल नाउ, वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। और ना आई थिंक एज ए म्यूजिक लवर आई गेस दैट इज द राइट वे टू टेक म्यूजिक, वो चेंज होना भी नहीं चाहिए, राइट। अगर आपके पास नॉर्थ में इंडियन म्यूजिक है जिसको आप हिंदुस्तानी क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हो, तो वो अगर वो एक चेंज हो रहा है तो यू शुड ऑल्सो हैव दिस वन पार्ट ऑफ म्यूजिक जो आज तक अपने प्योर फॉर्म में है, राइट। अगर आप क्लासिकल, मैं अब क्लासिकल सीख चुका नहीं हूँ, कभी नहीं सीख पाऊंगा, आई एम सॉरी। क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे क्लासिकल सीखूँ और मैं नॉर्थ साउथ में जाके क्लासिकल सीखूँ तो साउथ में आई विल बी जीरो, क्योंकि वो इतना प्योर है एंड अगर मैं देखूँ तो उनके एथिकली म्यूजिक में बहुत फर्क है, वो ओरिजिनल फॉर्म से कभी बाहर नहीं आना चाहते और वो आएंगे भी नहीं। लेकिन आई गेस जब प्रेफरेंस की बात आती है तो हमने डेफिनेटली दो रीजन्स ने एक दूसरे के प्रेफरेंसेस को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया है। हम लोग अब अराबिक कुट्टू सुनते हैं, कितने खुश होते हैं। हम लोग अब ट्रिपल आर के गाने सुन रहे हैं, वी आर डांसिंग ऑन दैट, ग्रूविंग ऑन दैट, एंड दोस गाइज ऑन द अदर हैंड आर डेफिनेटली ग्रूविंग ऑन पंजाबी सॉन्ग्स। व्हेन वी वेंट टू हैदराबाद वी कुड हियर पंजाबी सॉन्ग्स इन द क्लब इजीली, ऑल पंजाबी सॉन्ग्स मैन। सो प्रेफरेंस इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हुई है, वी कांट से कि वो म्यूजिक को टोटली हम बदल देंगे, बट या सो टॉकिंग अबाउट अदर रीजन्स, आई एम नॉट वेरी श्योर सिंस पिछले 7 सालों में ही ये पंजाबी म्यूजिक का ट्रेंड शुरू हुआ है, हौली हौली गिद्ध विच नच पतलो, राइट, एंड दैट हाई हील्स एंड देन गल तेरी सोच तो परे, मैं तेनू समझावा कि देयर आर न्यूमरस सॉन्ग्स जो पंजाबी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आए, न्यूमरस जॉनर्स, और उनको अलग अलग तरीके से शो किया गया, लाइक दिस इलीगल वेपन, ठीक है, इलीगल वेपन, जैस्मीन सैंडलर्स, सो आई एम नॉट श्योर कि आने वाले सालों में बॉलीवुड इज गोइंग टू अडैप्ट, ठीक है। देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तानी सिंगर्स गाया करते थे, दो दैट वाज माय फेवरेट एरा ऑब्वियसली, बहुत ही हैज मेड मी listen to all those songs. I guess I was unaware of many of them, and now that I heard them, I feel like I found gems, because those songs, there's no comparison, no competition. So due to some reasons वो चीज़ बंद हो गई, I don't know why, मतलब कुछ reasons रहे हैं and वो controversial reasons है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करते हैं। But I'm sure you're going to start the legacy at least again. Probably you and other singers who are listening to us. I can't sing like those people जो गा के चले गए, obviously never, but if at all अगर वो कभी होना हुआ तो I'll try my best कि I'll provide that music to people जो आप सबके बीच में बैठ के सुन सको, right? मतलब अगर वो हिप हॉप भी होगा तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि आपको सुनने में मजा आए, राइट, आपकी फैमिली को सुनने में मजा आए, वो वल्गर ना हो। You see guys, we need to promote young talent more, because I feel they have a lot of enthusiasm in them. Where they might fail is when we don't support or respect what they feel, It's very hard to make a mark in this kind of an industry where there's immense competition, where the future is not secure. It's not like आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर आपने इतने साल एक्सपीरियंस किया, फिर आपने एक कोर्स किया, उसके बाद आपकी जॉब लग गई, उसके बाद यू आर सेटल्ड। वैसे तो आजकल स्टेबिलिटी किसी करियर में नहीं है, बट स्पेशली और ये भी नहीं कह सकते कि किसी और करियर में मेहनत नहीं है, मेहनत हर एक में है। आपको ड्रिल जो है हर एक में बराबर करना पड़ेगा, पर कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको अपना नाम बनाने के लिए शायद मतलब एड़ी चोटी का जोर, खून पसीना एक करना पड़े, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा। तो उस तरीके के इतने अनसर्टेनिटी में जो हमारे यंग टैलेंट, आप जो लिसनर्स हैं, आप में से कोई होगा, हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो है, व्हेन दे आर मेकिंग एन एफर्ट, इट्स आवर राइट एज फ्रेंड्स, एज सिटीजन्स, एज सेंसिबल कंज्यूमर्स टू कंज्यूम राइट कंटेंट, टू प्रमोट सच यंग पीपल, young talent who want to excel, and to make sure that we are making sensible choice in taking what we are taking. Yeah, obviously, definitely. That is changing us also. It's जैसे मैं हरमन से सवाल पूछ ही रही थी और वो रिसर्च भी कर रहे हैं, and I'm sure he's finding out things like these कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं ना, जो क्योंकि ट्रेंड्स में वो पावर है, they change you as a person, they change your perception. खासकर this act, मतलब ये चीजें जो है आपकी साइकोलॉजी को अटैक करती हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो why not me, ठीक है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी ऐसी चीज देख ली जो सब कर रहे हैं, आपको उस चीज के बारे में पता भी नहीं होगा, बट यू विल आल्सो ट्राई टू डू दैट, क्योंकि सब कर रहे हैं। दिस इज हाउ ट्रेंड्स वर्क एक्चुअली, कि वो आपकी साइकोलॉजी पे सीधा अटैक करके आपको वो चीज करने पे मजबूर करते हैं। अगर सब हिप हॉप सुन रहे हैं, अगर सब एपी ढिल्लों सुन रहे हैं, तो अब नाउ बिकॉज मैं लाइव शोज करते रहता हूँ, सो आई हैव टू लिसन टू दोज सॉन्ग्स जो औरों को पसंद है, ठीक है, क्योंकि वो उनका ट्रेंड है, उनका अकॉर्डिंगली जो ट्रेंड चल रहा है उनके अकॉर्डिंगली वो ठीक है, राइट। मेरा एज अ परफॉर्मर आई नीड टू इंश्योर कि सब लोग खुश होके जाएं, राइट। सो ऑब्वियसली चलो ठीक है, कुछ एक आध रह भी जाता है, बट
majority of people should be very happy. Like overall, I think एक म्यूजिशियन के शोल्डर्स पे भी, हालांकि हम इस बात को शायद रियलाइज ना करते हो कि एक म्यूजिशियन के शोल्डर्स पे भी there's a social responsibility to give out the right message through his songs. Yeah. Because if at all he's giving something out which is not acceptable, yeah, which can probably change society for wrong, then it goes against. क्योंकि cult following है. Yeah, and this proves the fact that musicians and singers and performers and artists basically are those people जिनको actual में लोग अपनी लाइफ में ले लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपने अंदर. क्योंकि अगर आप देखो, मतलब अब सिद्धू मूसेवाला has such a big influence. सबको पता चल गया, ठीक है. Huge following. In the last few days सबको पता चल गया कि सिद्धू मूसेवाला is a legend. A legend. And the way he was always telling the truth through his songs. He used to write truth. ठीक है. And I mean, I salute such a singer who had such a powerful pen, such a powerful voice, such a powerful music. He told the truth and still made a trend. Still became into trend. In his song Just Listen, उसने ये चीज़ साफ कही थी कि जिन्ना चिर लिखूगी ये सच लिखूगी, होरा मंगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी. राइट. सो इसका मतलब है कि जितनी देर मेरा जो पेन है जितनी दूर लिखता रहेगा वो सच लिखेगा, किसी और की तरह मेरा पेन किसी का गुलाम नहीं है. So I think on this note, it's worth saying that we salute both the singers that we have lost in the recent few days. It was a very disheartening phase for us. very खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था जब वो न्यूज़ हमने सुनी है, और अब तक भी हम लोग वो न्यूज़ के जो है मतलब फॉलो अप स्टोरीज जो हम देख रहे हैं, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. एंड आई फील एक चैलेंज जो मैं हरमन से पूछ रही थी कि क्या हो सकता है एक इंडस्ट्री में एक चैलेंज, उसका एक छोटा सा पार्ट ये भी है कि वंस यू आर पॉपुलर, वंस यू हैव दैट काइंड ऑफ अ हाइप, यू आर लाइकली you actually are more vulnerable to troubles, to targets and troubles, to troubles and trolls and targets. बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे talented लोग भी होते हैं जिनको इतना troll किया जाता है that they give up on their profession. So these kind of things I feel we should avoid, and we should, like I told you, as sensible citizens, promote right kind of content and support these young people who are trying to do something good in the world. Yeah, and adding to this, मतलब जब मैंने पहले बात की थी सपोर्ट की, कि जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, सो व्हेन इंसिडेंट्स लाइक दीज हैपन, लाइक सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ कि उसको सरेआम गोली मारी दिन दहाड़े. So whatever may be the reasons, guys, that's not our concern and that's not a topic of discussion. Yeah, but that itself is a wrong action. Yeah, itself is a wrong action, and उनके पेरेंट्स की वो हालत देख के ऑब्वियसली नहीं देखी जाती, किसी से भी नहीं देखी जाती. So उनके पेरेंट्स की हालत देख के आई हैव सीन सच पोस्ट्स. मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ जो एस्पिरेंट्स हैं फिलहाल, मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड ऑलरेडी, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग. एंड उन्होंने वन ऑफ दोज पीपल, एक बंदा था, उसने पोस्ट डाली कि माई मॉम आफ्टर लिसनिंग टू दिस सिद्धू मूसेवाला इंसिडेंट सेड दैट कोई नहीं बनना सिंगर, कुछ नहीं करना, चुप करके पढ़ाई करो और घर पे बैठो, ठीक है, बहुत कुछ और करने के लिए. सो आफ्टर दैट ही रोट दिस लाइन कि अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं दैट लेजेंड्स नेवर डाई, आर्टिस्ट्स स्पेशली नेवर डाई. ज़रूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट लेजेंड ही बने, बट आर्टिस्ट स्पेसिफिकली दे नेवर डाई. एंड गाइस, व्हाटएवर लेवल पे, इफ यू those of you listening to us and you are an artist, you're doing something, I think our message to you would be don't stop that, keep putting your best effort. क्यों मज़ा तब आता है जब जब आपको कोई बोल रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, एंड फाइनली यू डू इट. कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के कहने की वजह से यू डाउट योरसेल्फ कि हाँ यार ये सच ना बोल रहा हो, राइट. दिस यूज्ड टू हैपन विद मी इन स्कूल अ लॉट. स्कूल में बहुत होता था ये. बट आफ्टर दैट दोज पीपल, अब मैं आज की डेट में स्कूल जाता हूँ तो दोज पीपल आस्क मी कि भाई तेरा कैसा चल रहा है यार, वी आर सो प्राउड ऑफ यू डूइंग दैट. आई गेस मन तो नहीं कर रहा है इसको बंद किया जाए, बट देन आई गेस इट्स क्वाइट सम टाइम हमने बातें की हैं. पहले तो हमें ये अच्छा सा एक गाना सुनाओ, जस्ट शेयर विद अस whatever is your favorite song right now, just sing it out for us. My personal favorite singer is मैं राहत अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ, राइट. एंड ऑब्वियसली ठीक है, मेरे कान नज़र नहीं आ रहे लेकिन मैं हाथ लगा दिया है, ठीक है. सो मैं उनको बहुत सुनता हूँ. मैं उनके सॉन्ग्स, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इज ओरे पिया उनका. बट आई डोंट थिंक, मैं कभी भी वो सॉन्ग मैंने ज़्यादा किसी के सामने नहीं गाया, बिकॉज आई थिंक कि मैं उसको जस्टिस नहीं दे पाऊँगा सॉन्ग को, राइट. जस्ट उसको मैं गाऊँगा, मैं उसको सिर्फ सुनता हूँ, उसके मज़े लेता हूँ. सो राहत अली खान जी का कोई अच्छा एक नॉर्मल सॉन्ग जो सबको समझ में भी आ जाए, बहुत हरकतें वगैरह मैं नहीं लूँगा. सो इट इज़
मैं ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैण निमाणे जीना मेरा है मरना मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी थैंक यू सो मच थैंक यू Wow, beautiful.